Good morning, student. Today I am going to discuss the meaning of planning and features of planning. Before discussion, I would like to tell about the learning objective of this topic. After studying this chapter, the student will be able to understand the meaning of planning and features of planning. Now the meaning of planning. Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when is to be done, how is to be done, and by whom it should be done. Planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. Planning is nothing but deciding in advance the future course of action. You know that when any organization is set up, that organization is set up for certain objectives, and planning decides in advance how that objective can be achieved. It means there are 4 questions. We try to get the answers in planning. That is what is to be done, यानी क्या करना है मैंने वही जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं वही क्या ऑब्जेक्टिव है. व्हेन इज़ टू बी डन, कब इसको पूरा करना है. हाउ इज़ टू बी डन, कैसे इसको पूरा करना है. whom इट शुड बी डन, और उस काम को कौन पूरा करेगा, उस ऑब्जेक्टिव को कौन पूरा करेगा. इन 4 क्वेश्चन का आंसर हम प्लानिंग में ढूंढते हैं. यानी एडवांस में डिसाइड करना है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उस काम को कौन करेगा. नाउ नेक्स्ट मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग रिक्वायर्स anticipating the future and consciously deciding what to do, when to do, and who to do it. It means planning involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives. इसका मतलब है प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और एडवांस में डिसाइड करते हैं किस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करेंगे, कौन सा एक्शन द्वारा पूरा करेंगे. You can say that planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. यानी प्लानिंग जो उस गैप को फुलफिल करता है, जैसे हम लोग कहाँ पर अभी हैं और हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब किस गोल को अचीव करना चाहते हैं. नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट फीचर इज प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड फीचर इज प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड फीचर इज प्लानिंग इज ए परवेसिव. फोर्थ फीचर इज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस process. Fifth feature is planning is a futuristic, that is forward looking. And sixth is planning is a mental exercise. Now I shall discuss one by one all these features. Now you can see features of planning. There are 6 features of planning. Now first features of planning. Planning focus on achieving objective. Planning seeks to achieve certain objectives and all plans are linked to
with the goals of the organization. Planning starts with the determination of objectives. इसका मतलब प्लानिंग जो है सर्टेन करता है कि कैसे गोल को अचीव करना है और कैसे ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करते हैं. और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर एंड रिजल्ट्स विच मैनेजर्स विश टू अचीव. ऑब्जेक्टिव जो होता है एंड रिजल्ट है जो मैनेजर अचीव करना चाहता है, यानी जो मैनेजर अचीव करना चाहता है एट द एंड ऑफ द हिज वर्क, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव. एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्टिव का हो सकता है, एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाई 10%. किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अपना सेल 10% बढ़ाना हो सकता है. दूसरा होता है रिडक्शन इन क्वालिटी रिजेक्ट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 5% to 2%. दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट का जो रिजेक्ट हो जाता है 5% रिजेक्ट हो रहा है तो उसको घटाकर 2% करें. क्वालिटी के चलते कोई भी रिजेक्ट हो जा रहा है तो उसको 5% से घटाकर 2% करें, मैंने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करें. सेकेंड फीचर इज प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. You know that there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. In this primary planning is a primary or first function to be performed by every manager. यानी प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है जो सभी मैनेजर को परफॉर्म करना होता है. No other function can be executed by the manager without performing planning function, because objectives are set up in planning and other functions depend on the objective of the planning objectives of the company. सबसे पहले जो काम होता है प्लानिंग ही होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कोई भी गोल डिसाइड करते हैं, क्या गोल अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है ऑर्गेनाइजेशन को. इसीलिए प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है या फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट. Now, objectives and organization fixed in planning function. Objectives gives direction and it is the base for all other courses of action. So, planning should be the first managerial function. You know here that there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. The third feature is planning is pervasive. Planning is required at all levels of management. However, the scope of planning differs from one level to another. For example, the top management undertakes planning for the organization as a whole. Middle management does the departmental planning. At the lowest level, day-to-day operational planning is done by supervisors. इसका मतलब प्लानिंग जो परवेसिव है, ब्रॉड है, विस्तृत है. प्लानिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाई एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब प्लानिंग फंक्शन सभी लेवल के मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. इसलिए प्लानिंग को परवेसिव कहा गया है. इट मीन्स प्लानिंग इज परवेसिव एंड रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. यू नो दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट के टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर. टॉप लेवल में प्लान को फ्रेम करते हैं, मिडिल लेवल में प्लान को इंटरप्रेट करते हैं और लोअर लेवल में प्लान को एग्जीक्यूशन और इंटरप्रेशन करते हैं. Now fourth, an important function of feature of planning is continuous.
इसका मतलब प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस होता है, हमेशा परफॉर्म करने वाला एक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस। Plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month, a quarter, or a year. At the end of that period, there is a need for a new plan to be drawn on the basis of new requirement and future conditions. इसका मतलब प्लान जो है 1 साल के लिए बना सकते हैं, 1 क्वार्टर के लिए बना सकते हैं, 1 मंथ के लिए बना सकते हैं, और जो प्लान पूरा हो जाता है यानी ऑब्जेक्टिव उस पीरियड का कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरा प्लान बना दिया। इसीलिए प्लानिंग को कंटिन्यूअस कहा गया है, यानी कि हमेशा प्लान बना, कोई भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमेशा प्लान बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे इफ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर्स हैव टू मेक चेंजेज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिवेलिंग। यानी समझ लीजिए अगर प्लान जो है बूम पीरियड के लिए बनाया गया, यानी जहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन के समय वहाँ डिप्रेशन हो गया, डिमांड कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, फिर से नया प्लान बनाते हैं, मैंने प्लान में चेंज करके प्रिवेलिंग कंडीशन के अनुसार नया प्लान बनाते हैं। इसीलिए प्लानिंग को कंटिन्यूअस कहा गया। एज कंडीशन चेंजेज प्लान्स हैव टू बी रिवाइज एंड न्यू वंस आर इंट्रोड्यूस्ड। It has been rightly said that it is a bad plan which admits no modification. इसका मतलब है प्लान हमेशा कंडीशन के अनुसार चेंज होता रहता है, रिवाइज होता है, उसमें नया नया इंट्रोडक्शन होता रहता है, इसीलिए प्लानिंग की कंटिन्यूअस कहा जाता है। नाउ फिफ्थ फीचर इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इसका मतलब प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य के बारे में देखता है और फॉरवर्ड लुकिंग। Planning is a futuristic function. Planning is never done for the past. Planning is thinking in advance what is to be done, when is to be done, where is to be done, and who is to be done. In other words, planning relates to future. इसका मतलब प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में देख कर ही बनाया जाता है। फ्यूचर में क्या प्रिवेलिंग सिचुएशन हो सकता है, फ्यूचर में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कैसे ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, उसको देखते हम लोग एडवांस में प्लान बनाते हैं। भविष्य को देखते हुए प्लान बनाया जाता है। फ्यूचरिस्टिक एडवांस में सोचता है क्या क्या भविष्य में हो सकता है, उसी का अनुसार प्लान बनाते हैं। इसका मतलब है प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, इट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर। नाउ सिक्स्थ फीचर इज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें सोचने समझने का कार्य किया जाता है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। प्लानिंग इज नॉट गेस वर्क बट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। यानी प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग होता है, भविष्य के बारे में इमेजिनेशन करते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा और सिस्टमेटिक थिंकिंग के द्वारा भविष्य में कोई भी ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है एडवांस में डिसाइड करते हैं। इसका मतलब है प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स, फैक्ट्स, consider estimates. Now at last I shall ask some questions. What do you mean by planning? Tell 5 features of planning. Third question is why planning is pervasive. Thank you.